Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you able to listen, ma'am? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. You mute yourself, please. Okay, we are dealing with the last article from this topic, that is the magnetic properties of transition series elements. Okay, in what do I say, general properties of these transition series elements, we have discussed that these transition metal atoms or elements, transition elements, they show magnetic properties, very good magnetic properties, and they are said to be paramagnetic in nature due to presence of unpaired electron. They are having unpaired electrons related with them in the outermost orbit. They have unpaired electrons, therefore they are called as paramagnetic. So most of the transition elements, they show magnetic properties, and those which are attracted by the magnetic fields, they are called as the paramagnetic, while those which are repelled by the magnetic field, they are called as the diamagnetic. So such substances which are paramagnetic are those which are having unpaired electrons in the atom. If atom is having unpaired electron related with it, then such type of atom or element, it will show paramagnetic character. On the other hand, if that particular compound, it is having paired electrons with it, then such type of compound is said to be diamagnetic in the nature. In case of iron, cobalt, nickel, they are having unpaired electrons, more number of unpaired electrons. As a result of which, these elements, they are more paramagnetic in the nature, or they are said to be ferromagnetic. Ferromagnetic substances are the substances or elements which may be magnetize, जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कल, जैसे लोहे का कीला हो गया, लोहे की पिन हो गई, उसको हम थोड़ी देर मैग्नेट के इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, उसके साथ में रखते हैं, तो मैग्नेटाइज बन जाते हैं. उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो भी दूसरी चीजों को, आयरन की दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं. ठीक है, these are the unpaired number of unpaired electrons. Scandium having 0, titanium 1, 4, here 5, manganese 5, here 4, cobalt D7. Can you tell me how many number of unpaired electrons may be there? Cobalt D7. Yes. 3. No. D7. See here, it has got D7 configuration. Okay, D7 configuration means पहले कुछ इलेक्ट्रॉन है ऑक्युपाई हो जाएंगे. ठीक है, D7 मीन्स हर ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. उसके बाद दो पहले इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 हो गए, और 6 और 7. ठीक है, पहला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पेयर्ड हो गया, दूसरा पेयर्ड हो गया. अब बचे कितने हैं? 3 बचे. ठीक है, एग्जैक्टली 3. ठीक है, 3 unpaired electrons will be here. Very good answer.
Okay, here nickel 2, copper 1 and 0 unpaired electrons. So how that magnetic character is calculated, how it is determined? It is determined with the help of an instrument called as Gauss balance. Gauss balance is there. So what is done in this procedure? A compound or sample whose magnetic characters are to be determined, it is kept in a small glass tube and weighed. ठीक है, पहले वेट कर रहे हैं ग्लास ट्यूब, उसका वेट करेंगे, टेकन इन स्मॉल ग्लास ट्यूब और उसका वेट करेंगे. इट इज वेट हो गए एक वेट, फिर उसके बाद इट इज वेट अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और फिर उसको वेट करेंगे. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट मास इज चेंज, मास के अंदर में चेंज आता है. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो डिक्रीज इन द मास. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है, डिक्रीज, वेट के अंदर में डिक्रीज होता है, मास के अंदर में डिक्रीज होता है. एंड अपोजिट टू दिस, इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज इंक्रीज इन द वेट, वेट के अंदर में इंक्रीज होता है. ठीक है, Gauss magnetic balance, it is used for this purpose. It is shown in the figure. It is coming in the next slide. Let us understand the cause of this behavior. Diamagnetic substances have unpaired electrons, no unpaired electrons. They have all electrons paired. Therefore, magnetic moment is 0. Okay, the external magnetic field induces a small magnetic moment, which is in opposition to the external magnetic field. The external magnetic field induces small magnetic field, which is in opposition to external magnetic field. So the diamagnetic substance therefore repel the lines of forces and they show slight decrease in the mass. On the other hand, paramagnetic materials, they are attracted towards lines of forces and therefore sample is pulled down into the gap between the pole of pieces of the magnet. As a result of this attraction, the sample registers or shows an increase in the mass. मास के अंदर में इंक्रीज बताता है इसके अंदर. So this is the Gauss balance. ये क्यूब के अंदर हम कंपाउंड रखते हैं. ठीक है, this is the electromagnet here, analytical balance with one pan removed. एक पैन इसके अंदर रिमूव किया गया है. The magnetic moment of the material can be calculated from the above change in the mass in the magnetic balance. It gives important information in respect of number of unpaired electrons present in it, the atom and about the orbital they are occupied. In some cases, even the structure of molecule or complex is indicated by its magnetic moment. कुछ केसेस के अंदर में स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स इट इज इंडिकेटेड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट. उसका स्ट्रक्चर कैसा है वैसा ये डिटरमाइन करने के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट का इस्तेमाल होगा. तो सब्सटेंसेस आर पैरामैग्नेटिक ओनली व्हेन देयर आर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम. ठीक है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू two motions. One is spin motion and other is orbital momentum or is the orbital motion. ठीक है, स्पिन मोशन यानी अपने अतराफ में जैसा बॉल स्पिन होता है, टर्न होता है अपने एक्सिस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन. और ऑर्बिटल मोशन यानी ऑर्बिट के अंदर में इस तरह से मूव होना. तो ये दो मोशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है. मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू स्पिन मोशन. एक तो स्पिन अपने अतराफ में अराउंड इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन. एंड एंगुलर मोमेंटम मींस ऑर्बिट के अंदर में मोमेंट हो रहा है. ये दो चीजों की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट बताता है. ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है. ठीक है, S plus L is equal to 4S, S plus 1 and L plus 1. What is L? L is the sum of angular moment quantum numbers. ठीक है, NS is the sum of spin quantum numbers. For an electron spin quantum number क्या हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है, वन हाफ. क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में स्पिन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है. Hence S is equal to S into N.
n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन नंबर ऑफ केसेस द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंच, इट इज मेड साइलेंट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स। बहुत सारे केसेस के अंदर में क्या होता है, ये ऑर्बिटल मोशन जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, कम हो जाता है, कई की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं उनके वजह से, लिगेंड्स जो होते हैं उनके वजह से ये ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, ये कम हो जाता है, किसी हद तक साइलेंट हो जाता है। देयरफॉर surrounding atoms and magnetic moment is only due to presence of unpaired spins. So here we will take into account only spin motion, ठीक है, क्योंकि अतराफ में जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके वजह से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन कम हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, टेक L इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑर्बिटल मोमेंटम को हम क्या करें, साइलेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इट विल टेक इनटू अकाउंट स्पिन मोशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, दिस न्यू S इज इक्वल टू 4s into S plus 1. It is measured in the unit boromagneton. In terms of n, number of unpaired spins, magnetic moment is given by the formula is equal to n into n plus 2. If n is equal to 1, then what will be the value? Value will be 1 into 1 plus 2. क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। This will be 1 into 3. So under root 3, it will be 1.73. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. N is the Yes, sir. number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons, suppose it is 1. 1 लिख रहे हैं हम, तो 1 into 1 plus 2 is equal to 3 हो जाएगा, ठीक है। N is equal to 1, so it will be under root 3, 1.73 हो जाएगा, ठीक है। अगर n is equal to 2 ले रहे हैं हम, तो what will be that will be 2.83 Bohr magneton and so on. N is equal to 3, so magnetic moment will be 3.87 and so on. So magnetic moments of some of the transition elements, they are quoted here, ions quoted here, ठीक है। Scandium, it is having no unpaired electron, magnetic moment will be 0. Titanium, 1 unpaired electron, 1.73, it is calculated and observed value is 1.75, ठीक है। Titanium, 2 unpaired electrons, 2.84, observed values is 2.86. Vanadium, 3 unpaired electrons, 3.87, calculated value, this is observed value, actual value is 3.85. Chromium के अंदर 4 unpaired electrons हैं, here value is 4.9, observed value 4.8. Manganese, 5.5 unpaired electrons, value is 5.92, observed value 5.96. Here in case of iron, value is 4.9, 3.87. In case of zinc, no unpaired electrons, so value is 0. It is having 1 unpaired electron, copper, so value is 1.7, 1.7. Nickel, 2.84, here 3.85, 3.87. Okay. If you have any difficulty, you may ask. No, sir. देखिए, पहला क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म जो कुछ आ रहा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स दे आर रिलेटेड विद द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में की वजह से पैरामैग्नेटिज्म हो रहा है, ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दैट सब्सटेंस विल शो मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट विल शो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो गॉय बैलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, वे करते हैं, कंपाउंड का वेट करते हैं, एक तो ग्लास ट्यूब के अंदर में डालकर वेट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे बात स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद वेट करते हैं। तो क्या होता है, वेट के अंदर में चेंज होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है,
वेट के अंदर में डिक्रीज होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में इंक्रीज होता है। ठीक है, कोएवैलेंस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये उसका डायग्राम है, फिगर है। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो रहा है वो काय की वजह से, दो मोशन की वजह से हो रहा है। तो कुछ स्पिन मोशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है ऑर्बिटल मोशन, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट जो बोल रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन के अंदर ये इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, उसके वजह से हो रहा है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ये है हमारा ऑर्बिटल मोशन। और स्पिन मोशन यानी खुद के अतराफ में, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो खुद के ही अतराफ में ये इस तरह रोटेट हो रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड ये मोशन कर रहा है। इस तरह से अपने एक्सिस के अतराफ में वो मोशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मोशन। ठीक है, और दूसरा मोशन ही ऑर्बिटल मोशन। तो ये टोटल फार्मूला है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे केसेस के अंदर में ऑर्बिटल मोमेंट जो होता है ये साइलेंट हो जाता है, कहीं की वजह से सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग लिगेंड्स आ जाते हैं, वो इसको साइलेंट कर देते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो अब एक ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज स्पिन मोशन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करते हैं, एल इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0, और जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्पिन मोशन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये स्पिन मोशन के लिए कैलकुलेशन है हमारा, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये फार्मूला है उसका, एज एस इज इक्वल टू स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। जैसे ही क्वांटिटी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती चले जाएंगे वैसे ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्वांटिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ती चली जा रही, उसके साथ में बढ़ते चले जाए मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। यहाँ पर फिर एक बार कम होना शुरू हो गए, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स कम होना शुरू हो गए। जिंक के अंदर में 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं। ठीक, here this chapter comes to end. This chapter is completed here. First transition series, the element of first transition series. क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो इसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन पेपर आपको भेजता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताया जाता हूँ कि कभी कभी जस्ट यू राइट डाउन द नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 10 एलिमेंट्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, 10 एलिमेंट्स, उनके नाम लिखना है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके ऊपर भी 10 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आए। और अक्सर तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, एटॉमिक रेडाई, आयनिक रेडाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनके अंदर में किस तरह से चेंज होता है, और इन द पीरियड के अंदर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर में किस तरह से चेंज होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि वैल्यूज दिए जाते हैं। ठीक है, ये आयंस बताए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनकी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, whether this ion will be paramagnetic, diamagnetic, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ भेज दूंगा बाद। ठीक है, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। No, sir. For arranging the meeting, two number of factors are there. Some work is going on, some borewell is going here, so I was late for I am late for arranging that. बाजू में बोर चल रहे, उसके बाद बीच में लाइट भी चली गई, उसकी वजह से मीटिंग करने के अंदर में थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन प्लीज।